آخر کار حاجی صالح محمد خان نے بٹل نادرا آفس کا افتتاح کر کے سردار محمد یوسف کو ایک اور شکست دے دی۔ بٹل نادرا آفس پر وفاقی پارلیمانی سیکرٹری حاجی صالح محمد خان کی تختی لگا دی گئی۔ بٹل پہنچنے پر حاجی صالح محمد خان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ جس کے بعد حاجی صالح محمد خان ہمراہ ناظم بٹل حزب اللہ خان، سینئر رہنما تحریک انصاف رضا اللہ خان اور مولانا رب نواز طاہر کے دعا کے بعد سرخ فیتہ کاٹ کر نادرا آفس میں داخل ہو گئے اور کاؤنٹر پر پہنچ کر 7 ماہ بعد ٹوکن کاٹ کر بٹل نادرا آفس کو امنی جامہ پہنا دیا۔ جس کے بعد MNA حاجی صالح محمد خان نے اپنے خیالات کا کچھ اس طرح اظہار کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی واجب احترام مولانا رب نواز صاحب اور ناظم حزب اللہ خان رضا اللہ خان اور جتنے بھی یہاں پہ میرے دوست میڈیا کے دوست ہیں، باقی دوست ہیں، فیاض صاحب ہیں، ڈاکٹر فیاض صاحب، نثار خان، یا جتنے بھی خورشید خان، عدنان طارق صاحب، کونسلر صاحبان، یہ جتنے بھی میڈیا کے دوست ہیں، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ آج آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں کہ آج ایک موبائل یونٹ سے، چونکہ یہاں پہ ایک یہ جو پہلے جو نادرا آفس تھا وہ نادرا آفس نہیں تھا بلکہ ایک موبائل یونٹ تھی، تو اس سے اپ گریڈ کر کے آج الحمدللہ ایک NRC کا آفس مکمل طور پہ، جو حکومت کا ایک مکمل طور پہ نادرا کا ایک آفس ہوتا ہے، نادرا رجسٹریشن سنٹر ہوتا ہے، آج آپ یہاں پہ آج ہم افتتاح کر رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ جس طرح حزب اللہ خان نے ایک بات کی کہ کچھ انٹیریئر منسٹری کا کچھ ایک پروگرام ہے کہ جس میں جہاں پہ زیادہ برڈنس ہے، جہاں پہ نادرا کے آفس پہ جہاں پہ زیادہ لوگ ہوتے ہیں، وہاں پہ کچھ جو دفاتر ہیں ان کو اپ گریڈ کر کے ان کے ساتھ ہی جو NRC ہے آفس ہے اس کے ساتھ پاسپورٹ والی سہولت بھی دی جائے۔ تو اس پہ ایک کام پروپوزل چل رہا ہے اور انشاءاللہ میں آپ سے یہی وعدہ کرتا ہوں کہ جب بھی اس کی اپروول آئے گی انشاءاللہ سب سے پہلے بٹل کی اپروول اس کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ۔ چونکہ دفتر آپ سب کو پتہ ہے، لوگ اس دوران کیا کچھ کہتے رہے۔ ایک موبائل یونٹ جب ختم ہوئی، چھوٹی موبائل یونٹ کہیں بھی ہوتی ہے 3 مہینے 6 مہینے بعد ختم ہوتی ہے، 2 سال چلتی ہے، پھر ختم ہوتی ہے، پھر آ جاتی ہے، لیکن یہاں کے لیے اگر موبائل یونٹ جس وقت ختم ہوئی، اگر ہم موبائل یونٹ کی اسی کو بحال کرتے تو میرے خیال میں 24 گھنٹے کے اندر ہی بحال ہو جاتا، لیکن چونکہ ہمارا ایک پروگرام تھا ہمارے دوستوں کا تمام کا کہ جی یہاں پہ ایک NRC یہاں پہ پراپر سنٹر ہونا چاہیے، ان سب کا ڈیمانڈ تھا، اور اس پہ حزب اللہ خان کی محنت میں ضرور سمجھوں گا کہ یہ جو ہر تیسرے چوتھے دن بعد وہاں پہ پہنچ جاتا تھا، اسلام آباد پہنچتا تھا، ہر ہفتے پہنچ جاتا تھا، اور پھر اس کے علاوہ بھی جو یہاں پہ میرے دوست کھڑے ہیں، جب بھی میں ملتا سب سے پہلے مجھے نادرا آفس کی بات کرتے ہیں۔ میڈیا کے ہمارے دوست چونکہ اس میں زیادہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ زیادہ مجھے سپورٹ کرنے والے الیکشن میں تھے، تو یہ یقین کریں گے کہ ان کی کوش ویلی کی جو میڈیا کی ٹیم ہے اس کو میں مبارکباد دیتا ہوں، اور ساتھ ناصر تنولی صاحب ہیں CID نیوز کے۔ تو کوش ویلی کی ٹیم کا ایک فائدہ ہے، یہ اپنے اور یہ صرف دیکھتے ہیں کہ جی حق دیکھتے ہیں اور حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، خواہ وہ اپنا نمائندہ ہو یا مخالف نمائندہ ہو، لیکن انہوں نے وہاں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی اپنی، اور بار بار مجھے بھی یاد کراتے رہے، میڈیا کے ذریعے بھی یاد کراتے رہے
आज अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस दफ्तर का इफ्तिताह हमने कर दिया है, आपने आज इस दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया है। इसमें मीडिया का रोल, आपका रोल और कोश वैली के जितने भी मेरे सरकर्दा मेरे दोस्त हैं, सब मौलाना रब नवाज साहब समेत सब जब भी मिलते थे मुझे नादर हाफिज की बात करते थे। हालांकि उस वक़्त मुखालिफिन ने बड़ा डंडोरा भी पीटा है कि जी पिछले उसमें ये मंजूर हुई थी और अभी इन्होंने आते ही ख़त्म कर दी। हमने ख़त्म नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज उनको नज़र आना चाहिए कि एक यूनिट से ख़त्म करके आज नादरा हाफिज बन चुका है, अपग्रेड हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी ख़त्म नहीं हो सकता है। नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर जब बन जाता है वो बन जाते हैं इंशाल्लाह। इससे आगे जा सकते हैं, आगे मजीद अपग्रेड हो सकता है, लेकिन ये ख़त्म नहीं हो सकता है। रज़ाउल्लाह खान भी बार बार इसकी याददानी कराते रहे। सारे यहाँ पे जो दोस्त हैं, शाहिद भाई हैं, खुर्शीद भाई हैं, अकनवाज भाई हैं और जितने भी हमारे मीडिया के दोस्त हैं तमाम, यानी बार बार इसी बात को दोहराते रहे कि जी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर का क्या हुआ। तो मैंने भी दिन रात एक करके इस पर कोशिश की और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये आज बहाल हो चुका है। तो इस तरह बाकी सहूलतें भी होंगी, साथ साथ ये चीज़ें चलेंगी। मुखालिफिन अपना काम करते रहते हैं, वो जब भी हम कोई किसी काम को हाथ लगाते हैं कहते हैं कि नहीं ये भी पुराना मंसूबा था, ये भी पुराना। चतर ग्रेड का जो मसला था उस वक्त भी लोगों ने कहा कि नहीं जी तो हालांकि 20 साल से हमारे दोस्त यहाँ पे खड़े कोशिश कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप सबकी काविशों से आज अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट होने जा रहा है, कुछ अरसे के बाद कंप्लीट हो जाएगा। बिजली की यहाँ पे काफ़ी सारे काम हो चुके हैं, काफ़ी ट्रांसफार्मर कोश वैली में लग चुके हैं। और जो आज मानसरे में पहुँचे हैं, जो मानसरे में संगड़ाई बटल 200 के वी आए हैं, कांडी बटल 200 के वी आए हैं, चपड़ा पाए 200 के वी आए हैं, सरियाल बटल 200 के वी, शारका बटल 200 के वी, मलुकड़ा 200 के वी, सादिकाबाद बटल 200 के वी, डब बटल 200 के वी, बेला मायून 200 के वी, मंडी बटल 200 के वी, छरिया बटल 100 के वी, बांडागई 100 के वी, अरोड़ी 100 के वी, कड़मंग 100 के वी, शारका बटल 100 के वी, मलुकड़ा 100 के वी, लम्बी ग्यारसज 100 के वी, लम्बी बटल 100 के वी, कड़मंग मेरा 100 के वी, बाटी 100 के वी और इसके साथ खानडोली बटल, बांडा बटल, डमरई बटल, कक्कू, नजद बटल यूनियन कौंसल, नजद बटल पुलिस स्टेशन, ठलियाँ, ये सारे ट्रांसफार्मर वो है कि जो मनसरा पहुंच चुके हैं। वो अगर आप आज भी लाना चाहते हैं तो आज भी ला सकते हैं। ये वो हैं कि पोल समेत सैकड़ों पोल भी आ चुके हैं, ये ट्रांसफार्मर भी आ चुके हैं, जो कि एक तारीख बन रही है। अल्लाह का शुक्र है बिजली का इस वक्त जितना काम इस ज़िले में लगा हुआ है। NA13 में जब मैं MNA बना मैंने पूरे वापडा से डिटेल ली कि NA13 में कुल ट्रांसफार्मर कितने लगे 72 सालों में। मुझे डिटेल आई कि 2406 लगे हैं। मैंने उस वक्त से ऐद किया था, मैंने कहा इंशाल्लाह इस 5 साल में 4000 से ऊपर लगेंगे और लग रहे हैं इंशाल्लाह 1500 के करीब आ चुके हैं, 1500 के करीब अभी तक नस्ब हो चुके हैं और इंशाल्लाह 4000 से इंशाल्लाह क्रॉस करेंगे। बिजली का काम है, सड़कों का काम है। और जो लोग ये दावा करते थे कि जी नहीं जी तरक्याती काम तो MNA तो सिर्फ कानून साजी करता है, तरक्याती काम तो सूबे में होते हैं, मैं आज उनसे पूछना चाहता हूँ आप तो सूबे में हैं। जब मैं सूबे में था मैंने उस वक्त भी अरबों के काम किए हैं। मैंने नहीं कहा कि जी काम MNA करता है MP नहीं करता है। जिसमें जुर्रत हो, जिसमें जज्बा हो वो एज MNA भी काम करता है, एज MPA भी काम करता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज MNA भी काम करता हूँ और आज वो MPA आज उनका हक बनता है कि आज आके खुल के लोगों की खिदमत कर ले, जिन्होंने इस ज़िले को 35 साल अंधेरे में रखा है, जिन्होंने इस ज़िले के साथ वो हाथ किए कि जो आज NA14 की अगर मैं बात करता हूँ, NA14 बन चुका है। वहाँ पे कैप्टन सफदर साहब ने जो 5 सालों में काम किए नजर आ रहे हैं कि वहाँ पे काम हुए, लेकिन NA13 के लोगों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 5 सालों में ये 70 साल के काम हम मुकम्मल करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि हर जगह में निशानी लगी होगी, हर जगह में काम नजर आएंगे। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह ये जो काबीना, ये जो गुलदस्ता खड़ा है, इनकी बहुत बड़ी मेहनत थी ये इलेक्शन में। और आजम खान स्वाति साहब अब चूंकि वजीर रेलवे हैं, इंशाल्लाह कुछ काम इस दफ्तर के हवाले से उनकी भी बहुत बड़ी कोशिश, 2 दफ़ा चेयरमैन को उन्होंने भी बुलाया, उस पर उन्होंने बड़ा काम किया है। हम इंशाल्लाह मिल के एक टीम की सूरत में इस ज़िले की खिदमत करेंगे, इस हल्के की खिदमत करेंगे, बल्कि पूरे ज़िले की खिदमत करेंगे। इंशाल्लाह ये खिदमत का काम अल्लाह पाक किसी से लेता है। जिनके उनके नसीब में होता तो उनके पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, तहसील की हुकूमतें, विलेज काउंसिल की हुकूमतें, यूनियन काउंसिल से लेके मरकज और 5-5 MPA, लेकिन उनके नसीब में नहीं थी। और मैं एक और काम पे लगा हूँ जो कि 15 दिन तक पता लग जाएगा। मैंने गैस के हवाले से सरन वैली, कोश वैली और पक्कल के जो इलाके रहते थे और उसमें तहसील बलाकोट,
मैंने एक प्रपोजल बनाया था, मैंने वज़ीर आज़म से उसकी उस डायरेक्टर लेके उसकी मंजूरी ली थी। जब गैस डिपार्टमेंट को, जब उन्होंने सर्वे किया और गैस डिपार्टमेंट को कागज चले गए, वहाँ पे प्लानिंग की जो डिपार्टमेंट है उन्होंने इसको रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि ये जो लाइन आई है, मेन जो लाइन है ट्रांसमिशन लाइन, इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है। अगर आप इन इलाकों को गैस देना चाहते हैं तो आप एक एडिक्शन लाइन मजीद आप मंजूर करेंगे जो पंजाब से आएगी, कोई 18 इंच की लाइन। आज अल्लाह का शुक्र, उसके बाद वही डायरेक्टर और वही जो प्लानिंग डिपार्टमेंट का जो लेटर था, मैं दोबारा वज़ीर आज़म के पास गया। मैंने कहा वज़ीर आज़म साहब, मैं आज़ाद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आपके साथ, ठीक है, आपके ताउन से मैं आया हूँ, लेकिन मुझ पे लोगों ने बहुत बड़ा एतमाद किया और मेरे हल्के के लोग मैंने काम का वादा किए, मेरे लोग तो गैस का डिमांड कर रहे हैं। आज अल्लाह का शुक्र है, तकरीबन कोई 4 दिनों से गली जागीर पंजाब से उसका सर्वे शुरू है। 18 इंच की दोबारा उसकी मंजूरी आ गई है और इंशाल्लाह ये 18 इंच की लाइन गली जागीर से शुरू होकर यहाँ तक उसमें कोंश वैली, सिरन वैली और इसमें तहसील बलाकोट मुकम्मल ये कंप्लीट हो जाएगा। उसकी मंजूरी भी हो गई इंशाल्लाह। हम ऐसे काम करेंगे कि जो कल लोग याद रखेंगे इंशाल्लाह। और वो गैस की लाइन सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि वो बडग्राम के लिए काफ़ी है। 18 इंच की एडिशनल लाइन और उस पर 4 दिन से सर्वे शुरू है और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको खुशखबरी सुनाएंगे। आपने जब यहाँ पे टोल प्लाजे की बात की तो उसमें जो 24 लोग थे FWO से वहाँ पे मीटिंग हुई है। हमने वहाँ पे यही डिमांड की कि 12 लोग हमारे लोकल कर लें और 12 लोग ठीक है जो आप करते हैं आपकी मर्जी से। उस पर उन्होंने वो एग्री हुए। सिक्योरिटी के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोग लग गए। और इसके बाद जो 30 रुपये का मुझे हिजबुल्लाह खान और शाहिद भाई ने कहा कि जी यहाँ पे लोकल लोगों से भी टोल प्लाजे पे 30 रुपये वसूल किए जाते हैं, वो मैं इंशाल्लाह इस दफ़ा मुलाकात करके करूँगा ताकि लोकल लोगों को कम से कम उससे एग्जाम्प्ट कर ले। बटन और रिजिडेंट को सियाहत के हवाले से इंशाल्लाह बहुत जल्द एक इनकलाब आ रहा है इंशाल्लाह। इस इलाके में मेरा प्रोग्राम है इंशाल्लाह। जिस तरह अभी काफ़ी सारी सड़कें अभी इस वक्त बड़ी बड़ी सड़कें जो 2.5 अरब रुपए के जिस पे काम लगा हुआ है, अल्लाह का शुक्र है कि उस पे लोगों ने बड़े रोड़े भी अटकाए, उसके कैंसलेशन के लिए भी लोगों ने बड़ी कोशिश की। मेरे हल्के के पैसा किसी का बाप भी जुर्त नहीं कर सकता कहीं और पे लग जाए, ये मैं कभी भी इसकी इजाजत नहीं दूंगा। मैंने रिजाइन दिया लेकिन वहां पे वो सड़क वापस किए। मैं अगर किसी और हल्के का पैसा अपने हल्के में न लगाऊं तो मेरे हल्के का तो कोई सोच भी नहीं सकता कि मेरे हल्के के पैसे शेख रशीद लगाए या यूसुफ रजा गिलानी लगाए। इंशाल्लाह बड़े बड़े प्रोजेक्ट आएंगे, छोटे काम भी होंगे, बड़े काम भी होंगे। अगर ये हमारे इत्तेफाक व इत्तेहाद जारी रहा तो इंशाल्लाह ये प्यारी टीम स्पेशल और मीडिया का मैं इस ज़माने में बड़ा रोल समझता हूँ कि मीडिया की वजह से काफ़ी हमें ज़्यादा स्पीड मीडिया की वजह से भी लग जाती है। कई जगहों पे हो जाता है कुछ देर से, चूँकि डिपार्टमेंट का काम कभी लेट हो जाता है, लेकिन मीडिया के भाई कोई कसर नहीं छोड़ते हैं तो फिर हमारी स्पीड थोड़ी और ज़्यादा हो जाती है। हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि जी काम हो। तो मैं आप तमाम का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपको मुबारकबाद देता हूँ। शौकत शाह साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त और आप सबके दोस्त, अल्लाह पाक उनको जल्द से दियाबी अता फरमाए। बहुत मुखलस दोस्त हैं हमारे और बहुत हार्ड वर्कर हैं, तो अल्लाह पाक उनके लिए भी खुसूसी दुआ मौलाना रमनवाज ताहिर साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि इनके लिए दुआ करे फलकता हूँ। बालीमंग रोड आज इंशाल्लाह कंप्लीट हो गया, उसके कागजी कार्रवाई कंप्लीट हो गई है और महीना डेढ़ के अंदर उसका टेंडर लग रहा है। 4 करोड़ रुपए उस पर लग रहे हैं। इस तरह इंशाल्लाह बलेजा के लिए भी कोशिश करेंगे क्योंकि वक्त काफ़ी लिए। अपने तमाम दोस्तों का फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।